Hello viewers, welcome again in my YouTube lecture series. Today I am going to explore a poem composed by Walt Whitman. In fact, Walt Whitman is an American poet, influential poet of America, regarding as the free verse. His poetry is written in free verse, and he was a poet, essayist, and many more. He is known for his volume, his collection, the poetry that is called The Leaves of Grass. When the first time Leaf of Grass was published, there were only 12 poems. Gradually and simultaneously, with the passage of time, the volume became bigger and bigger, and right now there are more than 100 poems in this collection, with new editions and further correction. Oh My Captain is a poem that is included in Leaves of Grass, and that poem we are going to discuss. Walt Whitman was born on 1819, 1819 and died in 1892, 1892, was an influential American poet, essayist, and journalist, often celebrated as one of the greatest poets in American literature. He is best known for his groundbreaking works, Leaves of Grass, a collection of poems first published in 1855. Whitman's poetry is characterized by its free verse style, its celebration of nature, humanity, and democracy, and its transcendental and realistic elements. वाल्ट विथमन यूं ही वाल्ट विथमन नहीं बना. वाल्ट विथमन हो या अदर कोई ग्रेट पोइट हो, पोइट होने के लिए इमेजिनेशन के साथ फीलिंग भी चाहिए. ऐसे तो पोइट होने के लिए बहुत कुछ चाहिए, बट if you have a strong feelings and a extraordinary imagination, and that sensitiveness, the feeling of sensitiveness, will makes you stimulate, and words come in your mind and in your heart, and that stimulation will brings word, and that words will occurs on the paper with the feeling. This will become a poem. तो वाल्ट विथमन सेलिब्रेट करता था नेचर को, डेमोक्रेसी को, और लीक से हटके मतलब विच इज इन ट्रेंड. जैसे हमारे यहाँ भेड़िया धसान होता है, जब एक भैंस आगे आगे लीडर, एक झुंड के भैंस अगर कोई पानी के तालाब में जाता है तो उसके पीछे पीछे सभी भैंस उस पानी के तालाब में चला जाता है. ऐसा नहीं, इससे अलग, दैट इज कॉल्ड लीक से अलग. अगर सभी एक दिशा में जा रहा है तो वी हैव डिसाइडेड टू गो अनदर डायरेक्शन with aberration and stupidity. So democracy is not an easy thing, and it doesn't apply on each and every country. Hence America is really an in true form of democratic country, but on the decades year ago, there were no any types of democracy in America right now in our country. आज जाके अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है,
लेकिन एक समय था जहां अमेरिका कहने को डेमोक्रेटिक था, लेकिन डेमोक्रेसी का डी भी वहां नहीं था। अमेरिका हैज गॉन थ्रू विथ मेनी वार्स, and the toughest was civil war, the war between black and whites. Unfortunately, on that time, the president was Abraham Lincoln. And this poem is an elegy. An elegy is a part of poem which is composed to be mourned. Semester 4, MJC 5, आप लोग अपना चैप्टर खोल लीजिए, ओ माय कैप्टन पोएम, और मैं रिसाइट कर रहा हूं और आप उसको देखिए। मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। प्लीज ओपन योर बुक and the poem is O My Captain. O My Captain has divided into 3 stanza, and each stanza has 8 lines. And this poem is totally different from other poem of Walt Whitman. वाल्ट विथमन की जितनी भी कविताएं हैं वो लगभग वर्स फ्री है। वो किसी भी क्लासिकल रूल रेगुलेशन को नहीं मानता है पोइट्री लिखने का। लेकिन ये जो कविता है औरों से अलग इसलिए है क्योंकि ये मीट्रिकली रूल रेगुलेशन को बहुत हद तक फॉलो करता है। पोइम होने के जो कुछ नियम कानून है, उस नियम कानून को ये कविता फॉलो करता है। इसमें राइम रिदम भी है, इसमें पैटर्न भी है, इसमें जो है सिंबल और मीटर तो है ही। तो चलिए पोएम को रिसाइट करते हैं और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। पहला स्टेंजा में पढ़ने जा रहा हूं। ओ कैप्टन, माय कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। ओ कैप्टन, माय कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। कैप्टन यहाँ पे सिंबल है और कैप्टन जो है अब्राहम लिंकन के लिए यूज हुआ है। अब्राहम लिंकन was the maybe third president of United States, जिसके टाइम में सिविल वार हुआ था और ब्लैक निग्रो और वाइट अमेरिकन के बीच में क्लैशेस हुए थे, और अब्राहम लिंकन ने इनस्लेवरी गुलामी को खत्म किया था और अमेरिका को ग्रेट बनाया था, और देश की जो इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी मीन्स की एकता, अखंडता, उसको बरकरार रखा था। सबसे बड़ी चुनौती अब्राहम लिंकन के लिए उस समय यह था कि अगर देश के अंदर ही देशवासी आपस में लड़ जाएंगे तो देश के टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, खंड खंड ना हो जाए, तो इस देश को की एकता और यूनिटी, जैसे हमारे यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, हम लोग डाइवर्स हैं, हम लोगों का खान पान, रहन सहन, जाति व्यवस्था, धर्म, लाइफ स्टाइल, कल्चर सब डिस्पर्स है, अलग अलग है। तो डाइवर्सिटी इन एवरी एंड ईच पार्ट ऑफ लाइफ, फिर भी हम सब यूनाइट हैं, एक है, वी आर वन इंडियन। तो आवर कंट्री इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उसी तरह से अमेरिका में भी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अमेरिका हमसे ज्यादा डाइवर्स है, अमेरिका में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो उस समय जब अमेरिका में सिविल वार हुआ, देश के ही लोग आपस में उलझ गए, मारपीट हो गया। मारपीट मतलब सिंपल मारपीट नहीं, इस तरह का जो जिस तरह से आर्मी लड़ता हो एक देश से दूसरे देश के साथ, बंदूक, हथियार, आर्म्स एंड एम्यूनेशन, मारकाट, ब्लड, देयर आर ब्लड एंड ब्लड, पूल्स ऑफ ब्लड, ब्लड की खून की नदियां बह जाना, इस तरह की जब घटनाएं होती है तो इस तरह की घटनाएं अमेरिका में घटी। तो जो लोग मरे, मराए, कटे, लेकिन सबसे जो बड़ी चुनौती थी वो चुनौती ये था कि देश की अखंडता न टूट जाए, और ये जो लोग डिह्यूमनाइजेशन हो गए हैं, ये जो जॉम्बी बन गए हैं, मनुष्य जो है मनुष्यता छोड़ दिया है। ये जब आदमी किसी दूसरे आदमी को मार देता है तो फिर आप सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मनुष्य है? हमें तो नहीं लगता है कि आप ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे, बट इट कम्स इन द फेज ऑफ लाइफ। लेकिन जिंदगी में ये सब होता है।
और अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कई कई सभ्यताएं खत्म हो गई है, एक सभ्यता दूसरे सभ्यता को खा गई है, निगल गई है। तो इस पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ये दूसरी टॉपिक हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पोइम है, पोइम का जो ओपनिंग लाइन है, ओ कैप्टन माय कैप्टन। तो ये कैप्टन सिंबल है, इमेज के रूप में इस्तेमाल हुआ है। और ये कैप्टन कौन है? तो कैप्टन अब्राहम लिंकन है। तो स्पीकर जो है, पोइट जो है, वो डायरेक्ट संबोधन करता है अपने प्रेसिडेंट को, अब्राहम लिंकन को। ओ कैप्टन माय कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। कि ये जो सिविल वार है, ये एक ट्रिप है, एक यात्रा है, और वोएज है, जर्नी है। और इस यात्रा में अमेरिका जो है एक जहाज है, अमेरिका एक जहाज है, और वो समंदर में चल रहा है। और वो समंदर क्या चीज का है? सिविल वार का समंदर है। मार काट, कत्लो गारत, उठा पटक, डिह्यूमनाइजेशन देश के अंदर हो रहा है। उस समंदर में अमेरिकी रूपी जहाज, अमेरिका को जहाज का सिंबल जहाज से लिया गया है। अमेरिका एक जहाज है और उसको चला रहा है अब्राहम लिंकन। तो पोइट कहता है कि ओ माय कैप्टन, ये जो हमारी यात्रा है ये कंप्लीट हो गई है और हम जीत गए हैं। हमने अपनी इंटीग्रिटी को बचा लिया है, हमने अपनी अखंडता को बचा लिया है। लेकिन इस पोइम में होता क्या है कि देश तो बच जाता है, लेकिन देश के उस समय के जो महान लीडर है अब्राहम लिंकन, उसे मार दिया जाता है। वो जब गृह युद्ध समाप्त हो जाता है, जब सिविल वार समाप्त हो जाता है, देश में पूरी तरह से शांति व्यवस्था लौट आती है, और जब नियम कानून बन जाते हैं, उसके एक महीने बाद, 1 से 2 महीने बाद, कोई पागल फेनेटिक आदमी अब्राहम लिंकन को जाकर के गोली मार देता है। तो उसी गम में अब वाल्ट विथमन ये कविता लिखता है। और जब किसी के गम में कोई कविता लिखा जाए तो उसे अंग्रेजी में इलीजी बोलते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, ओ कैप्टन माय कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। हमारा जो फियरफुल ट्रिप था, हमारी जो जर्नी था, वो फियरफुल था, डर से भरा हुआ था, और सच में डर से भरा हुआ था। हैज डन, कंप्लीट हो गया है। द शिप हैज रिच्ड एवरी रॉक, द शिप had weathered every rock, the prize was sought its own, the port is near, the bell I hear, the people all exulting। कह रहा है कि जब समुद्र से पोरबंदर पे, बंदरगाह पे जब जहाज आती है, तो पोरबंदर पे लोग जश्न मनाते हैं उस आते हुए जहाज को, उसके रिश्तेदार, नातेदार, और वो जहाज जिस पर्पज से वहां उतर रहा है, तो उस पर्पज के लोग वहां मौजूद होते हैं, और वो जहाज के आने की खुशियां मनाते हैं। और वहां पे बेल होता है, घंटी बजाया जाता है, घंटी बजा के ये सूचना दिया जाता है कि फला जहाज आ गया है। तो वो जो अमेरिका रूपी जहाज जो है वो किनारे लग चुका है, लोग खुशियां मना रहे हैं, हर वर पे, बंदरगाह पे घंटियां बज रही है, सूचना दिया जा रहा है, लोग खुशी से झूम रहे हैं, पागल हो रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। While follow eyes the steady keel, the vessel green and daring, but oh hurt, 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 oh the bleeding drop of reds where on the deck my captain lies, fallen cold and dead। लेकिन स्पीकर को एहसास होता है कि हम तो पहुंच गए हैं, लेकिन हमारा कैप्टन जो सबसे आगे है, शायद वो गिरा हुआ पड़ा हुआ है। देयर इज अ रेड, शायद उससे ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है। तो फर्स्ट स्टेंजा में स्पीकर को ये लगता है कि शायद ये मेरा इल्यूजन है, ये मेरा भ्रम है। तो फर्स्ट स्टेंजा में आप देखते हैं कि कप्तान जहाज लेकर के पोरबंदर पे, जहाज जो डेक पे लग चुका है, किनारा लग चुका है, अमेरिकी रूपी देश को अब्राहम लिंकन जैसे कप्तान ने किनारा लगा दिया है। लेकिन कप्तान किनारा लगाते लगाते दम तोड़ दिया है। और जो कवि हैं, जो स्पीकर हैं, जो बोल रहे हैं, इस नरेशन को, इस घटना को नरेट कर रहे हैं, उसको लगता है कि नहीं, कप्तान मरे नहीं है, ये मेरा भ्रम है। अब नेक्स्ट स्टेंजा को देखिए। ओ कैप्टन माय कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल, rise up, for you the flag it's flung, for you the bugle trills, for you bouquet and ribbon, for you the sires a crowding, for you they call,
The swaying mass, their eager faces turning, here captain, dear father, this arm beneath your head, it's some dream that on the day you are fallen cold and dead. यहाँ पे सेकेंड स्टेंजा में स्पीकर जो है, पोइट है, वो कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे इतना अटैचमेंट होता है अपने कप्तान से, अपने प्रेसिडेंट से, और जब उसको पूर्ण रूप से आभास हो जाता है, उसकी जो भरम है वो जब सच्चाई में बदल जाता है कि नो माय फादर, अब वो प्रेम से उसे कप्तान को फादर तक बोलता है कि हमारे अब्राहम लिंकन इज नॉट हिज बायोलॉजिकल फादर, बट ही हैज ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट मोर देन हिज ओन बायोलॉजिकल फादर। उसका अपना बाप नहीं है, लेकिन अपने बाप से भी ज्यादा सम्मान उसके प्रति पोइट दिखा रहा है कि वो मेरे फादर, वो मेरे कप्तान, यू आर डेड, योर लिप्स आर पेल, आपकी जो लिप्स हैं, आपके जो होंठ हैं वो पेल हो चुके हैं, वो ठंडा पड़ चुका है, कोल्ड। और ये जो आप पूरी तरह से कोल्ड हो चुके हैं, मर चुके हैं, डेड हो गए हैं, लेकिन लोग जश्न मना रहे हैं। थर्ड स्टेंजा को देखते हैं। थर्ड स्टेंजा में क्या कर रहा है पोइट? माय कैप्टन डज नॉट आंसर, माय कैप्टन डज नॉट आंसर, कह रहा है कि मेरा कप्तान अब जवाब नहीं दे रहा है, मतलब ही इज डेड। हिज लिप्स आर पेल एंड स्टील, अब उसके होठ पीले पड़ गए हैं, बदन ठंडा पड़ गया है। माय फादर डज नॉट फील माय आर्म, वो उसको उठाने गया है, लेकिन वो उसको उठा के अपनी बाहों में भर रहा है, लेकिन उसके फादर उसके आर्म की फीलिंग को नहीं समझ रहा है, क्योंकि उसमें आत्मा ही नहीं है, रूह ही नहीं है, सेंसिटिव है, मतलब वो अब जिंदा नहीं है। ही हैज नो पल्स नो विल, ना अब उसमें पल्स है, ना ही विल है, ना ही इच्छा है, ना ही उसमें पल्स। पल्स मीन्स ये जो हमारी नर्व्स चलती है, धड़कन, जो खून का दौरा हमारे बदन में होता है। द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, शिप अब एंकर्ड हो गया। एंकर्ड का मतलब जब शिप अपनी मंजिल पे लग जाता है तो उसे एंकर्ड होना बोलते हैं। और एंकर का दूसरा मीनिंग भी होता है जब समुद्र में तूफान आता है और शिप जब डगमगाने लगता है तो वहां पे भी लोग एंकर डालते हैं। एंकर इज ए लॉन्ग एंड वेरी वास्ट एंड हेवी चेन ऑफ आयरन, भारी भरकम चेन होता है जिसको डाल दिया जाता है, जिससे एंकर सीट वो जाके धरती को पकड़ लेता है समंदर में, और शिप को, नाव को, जहाज को डगमगाने नहीं देता है तूफान में। ऐसे होने को तो कोई नहीं रोक सकता, जो होना है वो तो होगा ही। अगर जहाज को डूबना होता है तो फिर एंकर भी कोई काम नहीं करता है। तो थर्ड स्टेंजा में क्या कर रहा है स्पीकर? माय कैप्टन डज नॉट आंसर, मेरा जो कप्तान है, मेरा जो बाप है, वो जवाब नहीं दे रहा है। हिज लिप्स आर पेल एंड स्टील, उसके होठ पीले पड़ गए हैं। माय फादर डज नॉट फील माय आर्म, मेरी आर्म को वो महसूस नहीं कर रहे हैं। ही हैज नो पल्स नो विल, न ही इच्छा है, न ही पल्स है। द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, देश तो किनारे लग गया है बहुत सेफली, और साउंड पूरी एकदम ताकत के साथ। इट्स वॉइस क्लोज एंड डन, यात्रा जो है वो कंप्लीट हो गया है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्ट्री शिप, डर से अब जीत की तरफ हम लोग आ गए हैं। जो डरा हुआ यात्रा था अब जीत में बदल गया है, देश जीत गया है, लोग हार गए हैं, युद्ध समाप्त हो गया है, गृह युद्ध। कब? इन विथ ऑब्जेक्ट ओन, पूरी तरह से जीत हुई है। एक्सॉल्ट और शोर एंड रिंग और बेल, घंटियां बज रही है, लोग जश्न मना रहे हैं। बट आई विथ मॉर्नफुल ट्रेड, लेकिन मैं क्या हूं? इस बोलने वाला स्पीकर पोइट जो है वो चुपचाप वहां से मॉर्नफुल होके गम में अपना कदम आगे बढ़ाता है। वॉक द डेक माय कैप्टन लाइज, और जहां पे कप्तान सोया हुआ है, लेटा पड़ा है, वहां से वो आगे वॉक कर जाता है, आगे बढ़ जाता है, कदम बढ़ा लेता है। फॉलन कोल एंड डेड, और इस तरह से वो जो पोइट कप्तान है वो फॉलन है, कोल्ड एंड डेड, वो ठंडा पड़ गया है और पूरी तरह से डेड है। तो इस तरह से ये पोएम समाप्त होता है। इस पोएम में कुछ खास है नहीं, इसमें जो है कुछ आपको, इसका जो मेन थीम है वो लीडरशिप और सेक्रीफाइस का है, कि किस तरह से वो लीडरशिप करता है अपने देश का, और किस तरह से वो सेक्रीफाइस हो जाता है देश के नाम पे।
दूसरा थीम पोइट का अपना ग्रीफ है और मॉर्निंग है, पोइट दुख में है, पोइट ही नहीं बल्कि पूरा देशवासी दुख में है और दुख को मना रहा है। विक्ट्री एंड लॉस, एक तरफ जीत है तो एक तरफ हानि है, देश तो जीत गया लेकिन महान नेता को खो दिया। और पेट्रियोटिज्म में नेशनल यूनिटी, कहीं ना कहीं देशभक्ति है और पूरी नेशनल यूनिटी है, पूरा देश एक हो गया है। इस तरह से ये पोएम समाप्त होता है। लास्ट का जो स्टेंजा है उसको मैं बोल देता हूं लास्टली। He realizes and accepts the fact that the captain is dead, so he mourns a lot and say, "My captain does not answer, his lips are pale and still. My father does not feel my arm. He has no pulse, no will. Now the ship reached the shore, and in safe he walks with grief away from the deck through the people, celebrating the glory by ringing the bells louder." Thank you very much. वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हो गया है, फिर भी आपके काम की चीज है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।